وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس جنوبی پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جاری اسکیموں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں نیا پاکستان منزلیں آسان پروگرام کا اگلا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جاری اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے نئے پروجیکٹ سے متعلق امور جلد طے کیے جائیں گے۔ بہاول نگر سے منچین آباد سے ڈونگا حیات کی سڑکوں کی تعمیر و توسیع کے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ ترنڈا محمد پناہ سے مظفر گڑھ کی سڑکوں کی تعمیر و توسیع جلد ہوگی۔ ملتان سے جلال پور پیروالا اور برے والا سے میاں چنو کی سڑکوں کو مکمل کیا جائے گا۔ ناردرن بائی پاس اور ڈیرہ غازی خان کے منصوبے بھی جلد مکمل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب میں آبپاشی کے پروجیکٹ سے متعلق امور بھی جلد نمٹانے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت، صوبائی وزیر آبپاشی محسن خان لگاری، چیف سیکرٹری اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ حکومت کے خلاف اسلام آباد میں جلسہ کرنے کے لیے اپوزیشن سرگرم ملتان گیلانی ہاؤس میں رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی نے اس حوالے سے مختلف وفود سے ملاقاتیں کی۔ علی حیدر گیلانی نے پارٹی عہدیداران اور حلقے کے عوام سے ملاقاتیں کی اور انہیں اسلام آباد جلسے میں شرکت کی دعوت دی۔ اس موقع پر علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا حکومت اپنا اعتماد کھو چکی ہے، کارکنان بھرپور طور پر اسلام آباد جلسے میں شرکت کریں، حکومت مکمل بوکھلا چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور قائم مقام امیر کا کہنا ہے حکمرانوں سے عوام تنگ آ چکی ہے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے آخری دن چل رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ کی ہدایت پر جنوبی پنجاب سمیت مختلف اضلاع سے قافلے 25 مارچ کو ڈی چوک میں پہنچیں گے۔ ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں امجد ملک۔ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری مولانا صفی اللہ کہتے ہیں کہ ملک کی صورتحال تذبذب کا شکار ہے۔ حکمرانوں سے عوام تنگ آ چکی ہے مگر عمران خان کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آج تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی حکومت چھوڑ چکے ہیں۔ اپوزیشن متفقہ طور پر 25 مارچ کو اسلام آباد میں بڑا جلسہ کرے گی۔ قائد جمعیت کے حکم پر کارکنان اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک طرف عوام ہے جو حکمرانوں کے قوم ملک دشمن پالیسیوں سے تنگ آ چکی ہے اور دوسری طرف حکمران ہیں جو کسی طرح بھی اقتدار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مدرسہ خیر المدارس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا صفی اللہ نے کہا کہ منحرف اراکین کو شوکاز نوٹس غیر قانونی ہے، ان کا جلسہ پرامن ہوگا۔ اگر تصادم کی صورتحال بنتی ہے تو حکومت ذمہ دار ہوگی۔ قائم مقام امیر پنجاب اقبال رشید کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ پرامن تحریک چلائی، عوام مہنگائی سے تنگ آ کر اپنے بچوں سمیت خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ جب ہم کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کب اتار رہے ہو، بد دعائیں دیتے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات ملک بھر کے اندر ہوئے ہیں کہ بچوں کو والدین نے ذبح کیا ہے بھوک کی وجہ سے۔ تو ذرے برابر بھی ان کے اندر انسانیت کی کچھ رمق ہوتی، بو ہوتی، شرم ہوتی، حیا ہوتی تو یہ استعفیٰ دے چکے ہوتے۔ جمعیت علماء اسلام کے عہدیداران بھی پریس کانفرنس میں شریک تھے۔ کیمرمین ارشد گجر کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ مہنگائی کے بے در پیوار ڈیرہ غازی خان میں بھی گاڑیاں رکھنے والوں کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ گاڑیوں کے پرزہ جات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ، خریدار اور دکاندار دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مہنگائی کے نئے ریلے نے گاڑیاں رکھنے والے افراد کی مشکلات بھی بڑھا دیں۔ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ پارٹس کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ریٹس تو واقعی میں اس میں کافی بڑے ہیں۔ مینٹیننس کا خرچہ ایسے سمجھے ڈبل ہو گیا۔ اگر پہلے منتھلی 5,000 میں 3,000 میں ہوتا تھا تو پر اب 8-10 ہزار میں ہو گیا۔ اسی طرح ابھی پارٹس وغیرہ، شاپر وغیرہ، ریگزین وغیرہ لینے ہم آئے ہیں، ان کے ریٹس ڈبل ہی ہو گئے ہیں۔ گاڑیوں کے پارٹس مہنگے ہونے پر کسٹمر تو پریشان تھے ہی، جبکہ اس مہنگائی نے دکانداروں کی بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر 10-15 روز بعد ریٹ تبدیل ہونے سے کاروبار شدید متاثر ہوا ہے۔ پہلے تو پچھلے سال کی نسبت تقریباً 1.5 سال پہلے تقریباً کافی گاڑیوں کے ریٹس اور سامان کے ریٹس ہیں، لائٹس ہو گئی، پارٹس ہو گئے اور بھی اس کے ڈیکوریشن آئٹمز ہو گئے، بہت ریٹ کم تھے۔ اب اس ٹائم پوزیشن یہ بنی ہوئی ہے پچھلے 6 مہینوں سے 8 مہینوں سے کہ چیز کے اندر ہر 15 دن، ہر 20 دن، ہر 25 دن کے ریٹ کے دوران 20%، 10%، 15% اضافے کے ساتھ آ رہا ہے۔
दुकानदारों का कहना था कि यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब मुल्तान में सैकड़ों बागात काटे जाने के बाद महकमा जंगलात को होश आ गया। जनूबी पंजाब में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान हाउसिंग सोसाइटीज की वजह से 5000 एकड़ पर कायम आम के दरख्त काटे गए। जनूबी पंजाब में हाउसिंग सोसाइटियां आम के बागात हड़प करने लगी। गुज़िश्ता 3 साल में 5000 एकड़ पर लगे आम के दरख्त काटे गए। जनूबी पंजाब में अब सिर्फ 2.5 लाख एकड़ रकबे पर आम के बागात बाकी हैं। दूसरी तरफ महकमा जंगलात जनूबी पंजाब जोन की तरफ से 1 जुलाई 2021 से फरवरी 2022 तक मजमूई तौर पर 8 मिलियन पौधे लगाए गए। रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद खुरम शहजाद का कहना है कि जनूबी पंजाब में अब तक मानसून शजरकारी मुहिम के तहत 12 मिलियन जबकि मौसम बहार की मुहिम के तहत 6 मिलियन पौधे लगाए जा चुके हैं। साउथ जोन में मानसून ट्री प्लांटेशन कैंपेन थी, उसमें हमारा टारगेट था साउथ जोन का 12.42 मिलियन और उसके अगेंस्ट हमने अचीव किया 12.22 मिलियन, ऑलमोस्ट 99% हमने अचीव किया। उसमें हमारी 4 कैटेगरीज हैं, हम अपने गवर्नमेंट फॉरेस्ट में लगाते हैं। महकमा जंगलात की तरफ से लगाए गए पौधों में फलदार और सायेदार दरख्त शामिल हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अली रियाज, मुल्तान। डेरा गाजी खान में तनख्वाहें और अलाउंसेस न मिलने पर PHA मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन ने जिना फैमिली पार्क के सामने धरना दे दिया। मुजाहरा करने वाले मुजाहिरीन का कहना है तनख्वाहें न मिलने की वजह से घरों में फाके हैं। डेरा गाजी खान में PHA मुलाजमीन सरापा एहतजाज। 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर जिन्नाह पार्क के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन की तरफ से तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया गया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सारे मुतालबात ये हैं कि सागो अरसा तकरीबन 9 माह को ज़्यादा गुजर गए थे। अलाउंसेस जेरे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ इशू थे हाली तक सागो नहीं मिले, जबकि बाकी तमाम महकमा जाते अलाउंसेस गिनते पैन। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाहें ना मिलने की वजह से घरों में फाकों का राज है। महंगाई के दौर में बगैर तनख्वाह के किस तरह गुजारा करें। महंगाई के इतने तूफान है, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अभी जो है ना हम लोगों से पैसे मांग मांग कर भाई पैसे दे दो, हमें किराए के पैसे, मकान के किराए के पैसे देने हैं, बिल के देने हैं। यकीन करो सर जी हम बहुत मजबूर हो गए हैं। PHA मुलाजमीन का कहना था कि मुस्तकिल मुलाजमीन को 25% अलाउंस की अदायगी की जाए और डेली वेजेस मुलाजमीन को फौरी तनख्वाहें अदा की जाएं। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मैपको इंतजामिया की नाअहली अवाम के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। रहीम यार खान शहर में बिजली की 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। गर्मी से बेहाल शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं बिजली आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। गर्मियां शुरू होते ही रहीम यार खान में लोड शेडिंग का जिन बोतल से निकल आया। 8 घंटों की गैर एलानिया बंदिश के बायस शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। उनका कहना था कि बिजली आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। मैपको इंतजामिया लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में जो लोड शेडिंग है ये तकरीबन 7 से 8 घंटे में जा रही है। ये वापडा की और मैपको की नाअहली समझे इसको कि इतनी लोड शेडिंग होने से अब गर्मियों का मौसम है, आपको पता है रमजान शरीफ आ रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जहां पर ये बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा है इस पर कंट्रोल करें। शहरियों ने मुतलका हुकाम से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रहीम यार खान में दादरा ऑफिस बाईपास रोड पर होने के बाद ट्रैफिक मसाइल का सामना। सैकड़ों अफराद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ कामों के लिए नादरा ऑफिस आते हैं। दफ्तर के बाहर रश के बायस बाईपास रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। शहरियों ने नादरा ऑफिस को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। रहीम यार खान में नादरा ऑफिस बाईपास रोड पर मुंतकिल होने से मसाइल का बाइस बनने लगा। नादरा की सहूलियात हासिल करने के लिए सैकड़ों अफराद के आने से सड़क ब्लॉक होना मामूल बन गया। करीब ही जनरल बस स्टैंड और हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है। बेपनाह रश और ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से करीबी घरों के मकीनों और दुकानों का कारोबार भी मुतासिर होने लगा है। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि वो अपनी दुकानें छोड़ने पर मजबूर है और घर वाले घरों में कैद है, किसी तरफ आ जा भी नहीं सकते। ना फैमिली के साथ बाहर आ सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। हमारा टाउन का रास्ता बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि अवाम इतनी है। 7-8 हजार लोग जहाँ आएंगे वो रोड के ऊपर खड़े होंगे, मोटरसाइकिलें खड़ी होंगी, रक्शे खड़े होंगे, तो ये लोग अवाम कैसे गुजरेगी। नादरा ऑफिस के बाहर लंबी लाइनों में लगी हुई खवातीन गर्मी से बेहाल और काम न होने पर शिकवा गुनाह है। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਆ, ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਣ ਡਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੈਲ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ।
शहरियों ने मुतालबा किया है कि नादर ऑफिस को किसी खुली जगह पर मुंतकिल किया जाए जहां साइलिन के बैठने के लिए सायादार जगह और पार्किंग की सहूलत हो और इसके साथ ही नादर ऑफिस में काउंटर का इजाफा भी किया जाए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए नई मशीनरी खरीदने की तैयारियां। सीईओ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फारूक डोगर कहते हैं 26 करोड़ 60 लाख रुपए की नई मशीनरी खरीदी जाएगी। मतलूबा नई मशीनरी में रोड वॉशर्स, हैवी लोडर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां शामिल होंगी। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फारूक डोगर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि प्रोक्योरमेंट कमेटी ने मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी है। हतमी मंजूरी के लिए केस इसी माह कंपनी बोर्ड को पेश किया जाएगा। कंपनी की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत में इजाफा नागुज़ीर है। शहर में रोजाना 1285 टन वेस्ट पैदा होता है, जबकि कंपनी अपनी इस्तेदाद कार के मुताबिक रोजाना 850 टन कूड़ा उठा रही है। डिटेल है हमारी कंटेनर लिफ्ट ट्रक की है, वो 7 मैट्रिक टन की जो है वो 2007 में का मॉडल था, 13 आई, 3 ऑफ रोड और 16 टोटल हैं। इस तरह कंटेनर कैरियर ट्रक की बात करें 1997 की ये परचेज की हुई है, 4 ऑन रोड हैं, टोटल 4 ही काम कर रही हैं। ये तमाम मशीनरी की डिटेल है। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फारूक डोगर ने कहा कि मुल्तान शहर में 13,799 स्ट्रीट्स हैं और 42 बड़ी शाहराह हैं। कंपनी यूनियन काउंसिल और मरकजी शाहराहों के लिए अलग-अलग वर्क फोर्स तश्कील देना चाहती है ताकि सफाई का मिसाली निजाम कायम किया जा सके। समझता था कि शायद मेरा सैनिटरी वर्कर जानबूझ के काम नहीं कर रहा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैं वहां पर देखता रहा कि यार घंटा 2 घंटा मैं यहाँ पर गाड़ी पे बैठ के देखता हूँ ये होता क्या है, ये हर दफा क्यों वेस्ट आ जाता है। तो एक वहां से एक बीबी जो काम करने वाली थी शायद किसी घर की, तो वो आई है, उसने वो टोकरा उठाया है और उसने वो उस पर जो ना वेस्ट फेंका है। फिर मैंने उसका जो एडजस्टेंट जो दुकानदार था उससे पूछा, वो कहते हैं जी हर 2 घंटे बाद इतना इवें थी दे। मोहम्मद फारूक डोगर ने कहा कि शफाफ और मुअस्सर निजाम के लिए कंपनी के बोर्ड के डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल 4 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। सड़कों और गलियों में मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। कैमरामैन नजीम सागर के साथ बिलाल नियासी, मुल्तान। दुनिया भर में आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जबकि जनूबी पंजाब के सबसे बड़े कुदरती लाशारी वाला जंगल में सियासी जंग जारी है। तोसा बिराज पर जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा कुदरती लशारी वाला जंगल मौजूद है, जो तकरीबन 5000 एकड़ पर मुश्तमिल है। हुकूमत की बेहिसी के बहस ये जंगल तबाह होने लगा है। जजीरा नुमा जंगल की खूबसूरती नून लीग और पीटीआई के नुमाइंदों की सियासत की भींट चढ़ गई। दोनों ग्रुपों के दरमियान कब्जे की जंग जंगल को निगलने लगी। कच्चे के रिहायशियों का कहना है आग लगाकर कीमती दरख्तों का सफाया कर दिया गया। हुकूमती नोटिस और सफारी पार्क का वादा भी जंगल को बचाने में नाकाम है। लशारी वाला जंगल जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जंगल है। जंगलात का बिल्कुल खात्मा किया जा रहा है। एक तरफ तो हुकूमत ने पौधों की शजरकारी मुहिम शुरू की हुई है, तो दूसरी तरफ यहाँ से बिल्कुल तो काफ़ी दफ़ा इस जंगल में आग भी लगा दी गई है और जो यहाँ के कीमती दरख्त हैं उनको भी काट कर बेचा जा रहा है। रामसर साइड का दर्जा रखने वाला खूबसूरत सरसब्ज जंगल 3 सालों में आग लगने, कब्जा वागुजार होने और सफारी पार्क के ऐलानात के बावजूद हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। हुकूमत एक तरफ तो जो है ना नए पौधे लगा रही है, क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत नए पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि सूरत हाल ये है कि ये पुराना जंगल है लिशारी वाला, ये इसको जो है ना रामसर साइड का दर्जा दिया गया था। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जंगल था। यहाँ दूर दूर से जो है ना लोग यहाँ सैर तफरीह के लिए आते थे। लशारी वाला जंगल करोड़ों का रेवेन्यू देने के बावजूद हुकूमती बेहिसी का शिकार है। लोगों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सैर व तफरीह के लिए सफारी पार्क के मनसूबे पर फौरी काम शुरू करे। कैमरा टीम के साथ तैमूर अतर, रोई कोटदू। वाइस चांसलर स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर डॉक्टर मुख्तार ने जंगलात के आलमी दिन पर पौधों को जिंदगी की जरूरत करार दिया। साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और मौजूदा वाइस चांसलर स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद डॉक्टर मुख्तार ने जंगलात के आलमी दिन पर अपना पैगाम दिया और कहा कि हर आदमी को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, पौधों की आबियारी करनी चाहिए, पौधे दरख्त बनकर हमारी जिंदगी बनेंगे। देखें जी, मैं तो यही अर्ज करना चाहूंगा कि हर आदमी को जो है ना पौधे लगाने चाहिए और पौधों की हिफाजत करनी चाहिए, खास तौर पर ग्रीन प्लांट, ब्रॉड लीफ प्लांट्स, क्योंकि इनमें ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमें मुहैया होती है। डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि जिंदगी ऑक्सीजन की मोहताज है और दरख्त ऑक्सीजन का बेहतरीन जरिया है। दरख्त ऑक्सीजन देकर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। जितनी आबादी बढ़ रही है इतने दरख्त नहीं लगाए जा रहे। हमारी जिंदगी जो है ना उसका गहरा ताल्लुक ऑक्सीजन से है। अगर ऑक्सीजन हमें मिल रही है तो हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो ट्री प्लांटेशन की कैंपेन
हो रही हैं जो है ना। जंगलात के आलमी दिन के मौका पर डॉक्टर मुख्तार समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अहाता में पौधे लगाए और दुआए खैर की। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। फातिमा जिन्ना पब्लिक स्कूल कबीरवाला में फन गाला का इनेकाद किया गया। मिली नगमों पर तलबा और तालिबात ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। फंडे को फंडे बनाने के लिए फातिमा जिन्ना पब्लिक स्कूल कबीरवाला में फन गाला का इनेकाद किया गया। तहसील अमन कमेटी के मेंबर, समाजी और फलाही तंजीम स्टेप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सैयद फारूक रजा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ टेबलोज पर शानदार परफॉर्मेंस देकर वालिदैन के दिल जीत लिए। कल्चर शो में तलबा और तालिबात ने पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। बच्चों का कहना था कि फैमिली के साथ फन गाला में आकर खूब इंजॉय किया है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी, मैंने बहुत इंजॉय किया। हमें बहुत मजा आया, हम अपनी फैमिली के साथ आए थे। टेबलोस भी हुए जो तलबा और तालिबात ने बहुत अच्छा इंजॉय किया। हमारे स्कूल में फन गाला हुआ है, पर हमें बहुत मजा आया। एमडी स्कूल सैयद शहजाद रजा का कहना था कि ऐसी तकरीबात के इनेकाद से बच्चों को अपनी सलाहियतों के इजहार करने का मौका मिलता है और उनमें खुद एतमादी पैदा होती है। जी, जैसा कि बच्चे अपनी तालीमी सरगर्मियों में बहुत मसरूफ़ रहते हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा के लिए फन गाला जैसे प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए। फन गाला में बच्चे और बच्चियां मज़े मज़े के खाने खाकर मंडे को फंडे बना रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा बशीर काजमी, रोही, कबीरवाला।